लोएस्ट ऑफ द एब्स। मैं ये हर जगह बोलता रहा कि मेरी बांजी है, वो स्कूल से, वो छोटी थी, अभी बड़ी है, उसके 3 बच्चे हैं। जब वो छोटी थी मेरे पास आई और बोले अंकल मुझे टीचर ने बोला कि वाइल्ड एनिमल्स का फ़ोटो लेके आओ। मैंने उससे कहा आप हमारा फ़ोटो लेके जाओ, इंसानों का फ़ोटो लेके जाओ कि हम लोग जितना We now have reached almost to the end of the program. I request State President Jamaat Islami Hind Goa Sir Asif Hussain to present the concluding address. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिनुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र। Praise be to the Lord of the universe, the creator and sustainer of mankind. Peace and blessings be upon the noble souls sent by God Almighty to teach us, to guide us, to purify us, and to warn us. Respected dignitaries on the dais, my dear brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May the peace, blessings, and mercy of God Almighty be upon all of us and all those people who are not present here. Today, Alhamdulillah, all the speakers did justice to what the topic is, that is, morality is freedom. Each one of our speakers, Kimberly, Gabriel, Sir, Ma'am, and even Minaz, they all shed very enlightening ideas into the concepts and framework in which we need to work, we need to educate our younger generations. So these things you all, I'm sure, know about it. My job is to sum up the whole discussion and present before you all some very practical solution to a very complex problem. The Holy Quran says, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. God says that He has made mankind in the best of the molds. Now, if you look around the world, man is such a being that he has specialized in various fields of science, medical field, engineering field, agriculture, communication. These developments that we see is this masterpiece called human being who has done this. Whether it is educational system, whether it is psychology, the amount of studies that we've done, it's not cats and dogs and animals doing it is us human beings. God Almighty says this because the physical nature in which He has made us is absolutely perfect. Many of our Bollywood and Hollywood tried to make some different species, but they failed miserably in the various movies and cartoons that we see. No species can be better than the human being because we are endowed with logic, reasoning, and ability to understand and differentiate between right and wrong. That's the good quality that we human beings have. The second thing is, God also warns us when He says, Summa radadnahu asfala safilin. But this human being can fall down to the lowest of the ebbs. मैं ये हर जगह बोलता रहा कि मेरी बांजी है, वो स्कूल से, वो छोटी थी, अभी बड़ी है, उसके 3 बच्चे हैं। जब वो छोटी थी मेरे पास आई और बोले अंकल मुझे टीचर ने बोला कि वाइल्ड एनिमल्स का फ़ोटो लेके आओ। मैंने उससे कहा आप हमारा फ़ोटो लेके जाओ, इंसानों का फ़ोटो लेके जाओ कि हम लोग जितना वाइल्ड है, हमने जितने वर्ल्ड वॉर्स किए हैं, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, नागासाकी, हिरोशिमा में जो बॉम्ब डाले हैं, हमने जितने जान लिया है, अभी पैलेस्टीन में जितना जान जा रही है या दिगर जगह में जितना जान जा रही है, वो इंसानों ने किया है। जो बॉम्ब्स हम लोग बनाए, जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स हम लोग बनाए, वो इंसान जो है उतना वाइल्ड है कि टाइगर, लायन, लेपर्ड जो है इतना जान नहीं लिया होगा। बात सही है? अल्लाह ताला, ईश्वर, गॉड ने वॉर्न किया था, सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, ये इंसान जो है गिर सकता है। और ये गिरने की निशानी है कि आज समाज में आप देखेंगे जो एनार्की हम लोग फैला के रखेंगे, जो बुराइयां हम लोग फैला के रखेंगे, बड़ा बदकिस्मती है ये वो इंसान, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, वो आज बुराई को एक्सेप्ट किया है, एक्नॉलेज किया है, उससे कोई परेशानी नहीं होती। बाजू में जो हमारी सिस्टर ने बताया, किम्बली ने बताया, हर जो स्पीकर्स यहाँ बताए उन्होंने, तमाम लोगों ने उस पर निशानी किया कि हमको फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो हमारी ज़मीर, हमारी जो एहसासात जो होती है, ये मर गई, हमारा जो कॉन्शियसनेस है ये ख़त्म हो गया। वी डोंट फील, हमको लगता ही नहीं कोई बुरा चीज़ हो रहा है, और ये बड़ा ये है। और इंसान
जो अपने आप को इतना अक्लमंद, बुद्धि और समझदार समझा अपने आप को, वो है भी, लेकिन ये बुद्धि उसके सर पर चढ़ गई और उसका नतीजा ये है कि वो इस कायनात का, इस धरती पर मालिक बन बैठा। मालिक इस तरह से बन बैठा कि हम लोग खुद कानून बनाने लगे, हम लोग खुद राइट क्या है रॉन्ग क्या है तय करने लगा। तो नतीजा ये हुआ, कहीं कहीं प्रोस्टिट्यूशन लीगल है, कहीं कहीं पोर्नोग्राफी लीगल है, कहीं रिलेशनशिप लीगल है। हर वो चीज़ जो ईश्वर ने मना किया, इंसानों ने अपने लेजिस्लेटिव पावर के ज़रिए जो है उसको हलाल कर दिया, लीगल कर दिया। नतीजा जो है, समाज जो है इसको भुगत रही है। हम और आप जैसे जो कॉमन मैन है, या इवन इलाइट जो सेलिब्रिटीज़ है, या जो भी है, सुसाइड ज़्यादा वहाँ पे होता है। आम आदमी कम सुसाइड करता है, लेकिन हॉलीवुड और बॉलीवुड इंडस्ट्री में जितना सुसाइड्स होते हैं वो ज़्यादा करते हैं। अगर अमीरी, सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस का स्टैंडर्ड होता तो बड़े बड़े अमीर लोग जो है सुसाइड नहीं करते। हैप्पीनेस इज समथिंग डिफरेंट, सेटिस्फैक्शन इज समथिंग डिफरेंट। वो चीज़ हम लोग को समझने की ज़रूरत है। आज जो है हम लोग सुपरमार्केट, हाइपर मार्केट वगैरह लव सुनते हैं। हम लोग जो है एक हाइपर जनरेशनल शिफ्ट में है, एक हाइपर जनरेशनल चेंज में है, जिसमें हमारे जो वैल्यूज़ है, जो सालों से, सदियों से हमारे सामने आई है, आपा जो सदियों से हमारा वैल्यू आई है, जो सदियों से हमारा जो है मोरल वैल्यूज़ है, इसको हम लोग जो है एकदम साइड में करके वी हैव अबंडन्ड इट, वी कंसिडर इट एज ऑब्सोलीट, और हमने नए नए तरीका, ज़िंदगी जीने का तरीका हम लोग बनाए, और उसका नतीजा हम सबके सामने है। हमारे जितने भी स्पीकर्स हैं वो आपके सामने रखा है। देखिए, इंसान जो है, मैं आप लोगों के सामने कुछ आइडियाज़ डिस्कस करूँगा, उसके बाद शायद हमारे अंदर जो है वो हकीकत, हमारी इस वजूद का, हमारे इस धरती में रहने का जो आइडिया है वो ज़रा साफ हो जाए। अब यहाँ कुछ औरतें भी हैं, कुछ मर्द भी हैं, बच्चे भी हैं। एक अहम सवाल है, क्या मैंने अपना फैसला लिया कि मैं मर्द बनूं, या बहन जो यहाँ बैठी है, क्या उन्होंने फैसला लिया कि वो एक लेडी बने? जिंदगी का ऐसा एक अहम फैसला जिसमें हमारा कोई दखल नहीं, हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं है। उससे बड़ी बात, हमारी अम्मी है, अब्बा है, डैडी है, मम्मी है, कि हमने चूज किया? डिड वी चूज आवर पेरेंट्स? इंसान जो अपने आप को इतना बड़ा समझता है, इतना एरोगेंट, तकब्बुर और एटीट्यूड उसके अंदर आया है, क्या हमने अपना नाम चूज किया? क्या हम में से किसी ने अपना नाम चूज किया, जिस नाम का हम लोग को एकदम फक्र रहता है, मेरा नाम गिर जाएगा, मेरा नाम ऊपर होना चाहिए? ये नाम का भी फैसला हम लोगों ने नहीं किया। हमारे भाई बहन का हम लोगों ने फैसला नहीं किया। हम जिस धरती पे पैदा हो वो भी हम लोगों ने फैसला नहीं लिया। किस सदी में हम लोग पैदा हो इसका भी फैसला हम लोगों ने नहीं लिया। हमारे ज़िंदगी का अहम फैसला कोई और ले रहा है, वो है अल्लाह मियाँ, ईश्वर, गॉड, जो हम लोग इस कायनात का क्रिएटर जिसको बोलते हैं। वो हिकमत वाला है, वो समझदार है। उसने फैसला लिया कि आसिफ जो है 20वीं सेंचुरी में बॉर्न हो, रोशा पेरेरा जो है 20वीं सेंचुरी में बॉर्न हो। ये ऊपर वाला का फैसला है, मेरा और आपका इसमें कोई भी दखल नहीं है। तो ये बात, ये आइडिया हमारे दिमाग में रखना चाहिए। दूसरा आइडिया जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि उमर आप जो है बिल्कुल डिपेंडेंट है। उमर आप कभी इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकते और नहीं है। बस एक एक्सरसाइज हम लोग करेंगे, बाद में पुलिस मेरे को लेके जाएंगे। वो एक्सरसाइज ये है कि ये दाहिने हाथ में हम लोग अपने नाक को बंद करेंगे और लेफ्ट हैंड में हमने जबान को बंद करेंगे। 10 मिनट कर लीजिए, 10 मिनट जाने जाएगी। यहाँ पे एक पल हम लोग जी नहीं पाएंगे। ये धरती में जो गॉड ने ऑक्सीजन हमारे लिए रखा है, इसकी एहसास नहीं है हम लोग को। ये हम लोग जानते तो हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी, लेकिन ये थॉट प्रोसेस में इंस्टिल नहीं हो रहा कि मेरी हकीकत क्या है। और थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, आप ज़रा सोच लीजिए, ये जो प्यारे प्यारे इंसान यहाँ जो है, प्यारे प्यारे जो बच्चे बने हैं, ये बनते कैसे हैं? ये गंदा सा पानी मर्द से जाता है, औरत में मिलता है, और वंडरफुल ह्यूमन बींग्स पैदा होता है। गांधी जी, नेहरू जी, भगत सिंह और भी थाउजेंड्स ऑफ ग्रेट
डॉक्टर्स, सर्जन, सोशल वर्कर्स, तब वैसे बनते हैं। अल्लाह ताला कुरान में कहता है ये ओरिजिन आपका याद रखो, आप बने कैसे। ये याद जो है ये इंसान को अपने धरती पे, अपने ज़मीन पे रखने के लिए तैयार रखता है। ये चीज़ होना चाहिए हम सब के अंदर। तो ये जो 3 आइडिया मैंने बताया, ये इतना ही नहीं है, ये इंसान जो है डिपेंडेंट हर वक्त है। छोटे बच्चे यहाँ हैं, जो माँ है उनको मालूम है कम से कम 1.5-2 साल वो अपने बच्चे के पोटी साफ करने में रखते, मेरे नौजवान भाई और मैं खुद भी। हमारे अम्मी ने जो है, आवर मदर हैज स्पेंट ऑलमोस्ट 1-2 years क्लीनिंग अ पोटी। वी वर हेल्पलेस। फीडिंग दिया हम लोग को, बोल नहीं सकते थे, हमको बोलने का अदब सिखाया। हमारे टीचर्स जो स्कूल में है उसने हमको सिखाया क्या हम लोग बोले क्या न बोले। तो इंसान अपने ज़िंदगी में इंडिपेंडेंट कभी नहीं है, वो डिपेंडेंट है। इकोनॉमिक सिस्टम में डिपेंडेंट है, एजुकेशन सिस्टम पर डिपेंडेंट है, हर चीज़ उसको चाहिए। टीचर नहीं होते तो मैं शायद आज आप लोगों के सामने नहीं होता मेरे स्कूल में, सेंट रीज़ा और रजना मंडी। और वो किसान अगर वहाँ पे अनाज नहीं उगाता तो मैं फल फूल काट कर इतना तंदुरुस्त नहीं रहता। हम में से हर आदमी जो है मोहताज है। अगर जो लेबरर जो रोड बनाता है, उस रोड जो मेहनत वो लोग करते वो रोड नहीं होता तो शायद सफ़र करके मैं यहाँ नहीं पहुँच जाता। तो इंसान जो है हर वक्त जो है अपने जो ये बिरादरी है, ह्यूमन ब्रदरहुड, एक दूसरे पे लिए हम लोग डिपेंडेंट है। कोई ये बोल ही नहीं सकता कि वो इंडिपेंडेंट है। ये तीसरी आइडिया जो हम सब कुछ समझना चाहिए। चौथी आइडिया जो मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो ये है कि इंसान कोई ऐसा नहीं है बकरी या बैल या इस तरह का नहीं है। ये मनुष्य जो है, जैसे अल्लाह ताला ने कहा कि लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, जिस तरह से हमारे जिस्मानी ज़रूरत के लिए हर चीज़ इस धरती में अल्लाह ताला गॉड क्रिएटर ईश्वर ने बना के रखा है, उसी तरह हमारी जो सोल के लिए जो ग़िज़ा चाहिए, जो फीडिंग चाहिए, जो स्पिरिचुअल आत्मा के लिए जो हमारी जो ग्रोथ के लिए जो इनपुट चाहिए, हमारे इस धरती में रहने के तौर तरीका क्या हो, किस तरह से हम लोग रहे, ये बड़ा अहम चीज़ है। वरना एकनाथ सर एक कानून बनाएंगे, गैब्रियल दूसरा कानून बनाएगा, मैं कुछ और सोचूंगा, हमारी बहनें बोलेंगे कि हमारी कुछ और चीज़ होना चाहिए। तो ये जितने दुनिया में जितने लोग हैं उतने अलग अलग आइडियाज़ ऑफ मोरालिटी, उतने अलग अलग डेफिनेशंस एंड वेज ऑफ लाइफ होंगे। और ये जो अलग अलग आइडियोलॉजी, इज़म्स, फिलॉसफी जो इंसान के सामने आज मौजूद है, उससे जो है सारा समाज जो है कंफ्यूज्ड है। ये केव में जब हम लोग जाते हैं, उसमें से अगर रास्ता थोड़ा भटक जाए और कहीं जाए हम लोग, तो फिर हम लोग को मालूम नहीं पड़ता वापस कैसा आने के लिए। तो इंसान को इस धरती में mankind in this world needs guidance. This is something that we need to understand. ये गाइडेंस के बगैर इंसान जो है अपना ज़िंदगी जी नहीं सकता। और ये जो गाइडेंस है, लॉज हैं, सिस्टम है, ये देने वाला कौन हो सकता है, इसको हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। हम इसलिए वो 3 आइडियाज़ में आप लोगों के सामने रखा। मेरी एग्जिस्टेंस मेरी अपनी डिसीजन नहीं है, मेरी जेंडर मेरी अपनी डिसीजन नहीं है। उसी तरह ज़िंदगी का जीने का तरीका, ज़िंदगी का उसूल, ज़िंदगी का राइट एंड रॉन्ग, क्या चीज़ अच्छा है, क्या सही है, क्या मोरालिटी है, इसको भी डिफ़ाइन करने वाला वही ईश्वर है जिसने हमें आपको पैदा किया है। हमसे पहले जितने लोग आए वो है जो इस मोरालिटी को डिफ़ाइन करेगा, वो है जो मोरालिटी के स्टैंडर्ड सेट करेगा। वरना जो 100 साल पहले जो सही नहीं था वो आज उसको ठीक समझा जाता है। What was wrong 20 years back is considered fine today. तो जो मोरल लॉज होते हैं या मोरल एटिकेट्स होते हैं या एथिक्स होते हैं, ये टाइम के साथ, वक्त के साथ या ज़माने के साथ बदलता नहीं है। ये परमानेंट उसूल्स रहते हैं। जो चीज़ गलत है 100 साल पहले या 500 साल पहले, वो अभी भी गलत है। ये हम लोग को बहकाया जाता है। ये स्लोगन सुनने को बहुत अच्छा लगता है, माई बॉडी माई चॉइस, माई बॉडी माई राइट। ये कह कर हमारे औरतों को नंगा कर दिया है। अभी हमारे सिस्टर ने बताया कि पोर्नोग्राफी इंडस्ट्री जो है
यही कह करना, अब क्रिकेट हम लोग सब देखते हैं, अब क्रिकेट में कोई बैट्समैन 6 मारता है तो उधर बाजू में कौन है उधर आईपीएल में नाचने के लिए? वी गॉन बैक टू दैट ओल्ड एज, करेक्ट ना? मॉडर्नाइज तरीके से उसको बताया जाता है। चिट्ठी भी आ गया, तो मैं अपनी बात को थोड़ा तेजी कर दूंगा। ये जो आइडियाज हम लोग को मूवीज के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, ये पूरा समाज है, ये दोष अक्सर हम लोग ऐसे मोरालिटी के प्रोग्राम में हम लोग पूरा उठा के नौजवानों के ऊपर डालता है। सॉरी, पूरा समाज इसमें इन्वॉल्व है, सीनियर से लेकर जो है लोअर लेवल। तो ये आरोप हम लोग नौजवानों पर बिल्कुल नहीं डालेंगे, मैं तो बिल्कुल नहीं डालूंगा। मैं तो कहूँगा कि हम लोग को चाहिए कि उनके लिए एक अच्छा समाज दे, अच्छा उसूल उनको दे। वो है ये कैंपेन का पूरा लक्ष्य, ये है कि ये समाज अच्छा सोचने वाले बने, अच्छा डायरेक्शन में जाने, और जिस गाय की तरफ हम लोग जा रहे हैं, जिस वैली की तरफ हम लोग जा रहे हैं, उससे बचाकर जो है उनको एक अच्छे रोशन, एक पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव यूथ बनने की तरफ हम लोग लेके जाए, और इसकी ज़रूरत है। 5 अहम क्या बोलते हैं एक्सपेक्ट्स है जिसमें हम लोग इस समाज को ठीक कर सकते हैं। वी से वी कैन टेक द हॉर्स टू द पॉन्ड बट द हॉर्स इटसेल्फ हैज टू ड्रिंक द वाटर। इंसान को बताया जा सकता है, और इस ईश्वर ने बताया है, और ईश्वर ने हमको मार्गदर्शन के लिए सब लोगों को भेजा है। 1,24,000 जो है पैगंबर, रसूल, प्रॉफिट्स, मैसेंजर्स, संत, ये लोग भेजे गए। बहुत पुराने लोगों का हमको मालूम नहीं है, लेकिन जितना बताया गया है उनके बारे में मालूम है। एडम, इब्राहिम, मोसेस, जीसस, मोहम्मद, ये सब ईश्वर के भेजे गए प्रॉफिट्स हैं, मैसेंजर्स हैं। 2 इंसानों को बताया कि सीधा रास्ता क्या है, तरीका क्या है ज़िंदगी जीने का, ये बात उन्होंने बताया। तो हमको चाहिए कि हम लोगों को जो है इनकी बातों पर जो है हम लोग को अपना सोच रखना चाहिए। 5 अफराद है, 5 चीज़ें एक्सपेक्ट्स हैं जो एक समाज को बनाती है। एक है इंडिविजुअल, तो इंडिविजुअल के सामने गाइडेंस तो बता सकते हैं, बहुत सारे प्रॉफिट्स आए बताए, लेकिन एक इंडिविजुअल को अपना खुद फैसला लेना पड़ेगा कि वो राइटियस पाथ चूज करेगा या फिर गलत रास्ता चूज करेगा। ये उसका फैसला है, और ये आज़ादी ईश्वर ने दिया है। ला इकरा फिद्दीन, दीन में कोई कंपल्शन नहीं है, फेथ में कोई कंपल्शन नहीं है। अल्लाह ताला ने, ईश्वर ने रास्ता बताया, ये रास्ता आपको अच्छे की तरफ लेके जाएगा, ये रास्ता जो है बुराई की तरफ लेके जाएगा। चॉइस हमारा है, किसी को इस मामले में ज़बरदस्ती हम लोग कर नहीं सकते। वो इंटेलिजेंस इसीलिए तो दिया, इसलिए तो ईश्वर ने बोला लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। तो ये पहली चीज़ इंसान। दूसरा है फैमिली। फैमिली एक अहम रोल करता है एक आदमी को तैयार करने में। अब ये फैमिली को डिस्ट्रक्ट करने के लिए आपके सामने लेस्बियनिज्म, होमोसेक्सुअलिटी, उसका नाम भी बदल देते हैं। ये जो लॉबिस्ट है, आप उसके बारे में जिस तरह से वो लोग लॉबिंग करते हैं, जिस तरह से ये आइडियाज़ को प्रमोट करते हैं, इट्स अ बिग क्या बोलते हैं उसको, लॉबी करते हैं। लेकिन ऐसा दिखाते हैं कि हर शख्स उसको पसंद करता है, जबकि ये नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, मैक्सिमम लोग हैं जिसको इसको अननेचुरल समझते हैं। तो फैमिली सिस्टम को हम लोग को बरकरार रखना पड़ेगा। आजकल जो है शादियां कम हो रही है, बच्चे कम हो रही है, सब लोग ताज्जुब रहेंगे मैं जब ये बात बोल रहा हूँ कि इंडिया का पॉपुलेशन तो बहुत है। इंडिया का पॉपुलेशन है तो हम लोग इकोनॉमिक डिजास्टर से बच गए। यूनाइटेड नेशन ने 13 कंट्रीज़ को वार्निंग दिया है कि आप लोग अगर बच्चे नहीं बनाएंगे तो आपका जो है 2050 तक आपका खात्मा होगा। चाइना ने जो 1 फैमिली 1 चाइल्ड का पॉलिसी एग्रेसिवली परस्यू किया, दे हैव कम टू दी लोअर रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ पॉपुलेशन। मतलब अभी उन्होंने इतना उसको ये किया है कि दे आर नॉट गोइंग टू हैव सफिशिएंट चिल्ड्रन बीइंग बोर्न टू रिप्लेस द सीनियर पेशेंट। तो सीनियर्स ज़्यादा है और नए बच्चे कम है, ये इन्वर्स हो गया इस तरह से। सो दैट इज गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम। जापान इज अनदर कंट्री दैट हैज सीरियस प्रॉब्लम। फैमिली लाइफ, वो लोग शादी नहीं करते। अभी चाइना इज गिविंग इंसेंटिव्स नो इन सर्टन डिस्ट्रिक्ट्स। जापान इज गिविंग इंसेंटिव्स टू भाई शादी करो, बच्चे बनाओ। तो जो ईश्वर का जो निज़ाम है, उस निज़ाम के साथ हम लोग खिलवाड़ करेंगे। इफ़ वी प्ले with the systems that God Almighty has established,
वी आर गोइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम्स आवरसेल्व्स एंड वी हैव क्रिएटेड। ये दूसरा है, फैमिली सिस्टम को हम लोग को बरकरार रखना पड़ेगा, इसके लिए हम लोग को कोशिश करना पड़ेगा। अदरवाइज इफ द फैमिली इज डिस्ट्रॉयड then it is open play field for all the other corporate and imperialistic forces. Imperialistic forces की मैं कुछ बातें आपको बताऊं। ये जो कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है ना, बोलता हूं मैं, बोलूंगा, फेयर एंड लवली ट्यूब होता है गोरा बनाने के लिए, इतना छोटा सा ट्यूब होता है। अब मैं आपसे पूछता हूं, फेयर एंड लवली अफ्रीका में जाके एडवर्टीजमेंट करें, वो बकेट में बेचेंगे? कॉस्मेटिक इंडस्ट्री हम लोग को झूठ में रखना चाहती है और उन्होंने ब्यूटी को एक अलग डेफिनेशन दिया, ऑब्जेक्टिफाई किया औरतों को, ब्यूटी का डायमेंशन को चेंज किया। ब्यूटी क्या है? कैरेक्टर है, मोरल्स है, ह्यूमिलिटी है, काइंडनेस है, ये है ब्यूटी। मर्द आजकल तो मर्द भी जाके पार्लर में जाके बैठे हैं, बाल को टेढ़ा मेढ़ा करते हैं। अल्लाह मियाँ जब किसी को बनाता है ना, उसका बाल, उसका रंग उसके मुताबिक देता है, उससे हम लोग को सेटिस्फाई होना चाहिए। ये चीज़ है। तीसरा फैक्टर जो है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा जगह बना है कि काफ़ी सारे वेस्टर्न सोसाइटीज़ में और इंडिया में भी अभी होम स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट है। वो बोलते हैं बच्चे अगर स्कूल भेजते हैं तो बिगड़ते हैं, हम लोग बच्चों को घर पे ही पढ़ाएंगे। ये कॉन्सेप्ट भी आया है। क्यों आया है? क्योंकि स्कूल का जो माहौल बना है तो काफ़ी चीज़ें जो है बच्चे वहाँ से सीखते हैं। अच्छी चीज़ें भी हैं, लेकिन ये नेगेटिव चीज़ को भी हम लोग को डिस्कस करना पड़ता है। जैसे कॉलेजेस में बहुत सारे बच्चे हैं, वो बताएंगे कि पूल पार्टीज़ में क्या होता है। माँ बाप बहुत खुशी से उनको कॉलेज में भेजते हैं। अब वो भी बोल दूंगा, जुलाई में एक बॉयफ्रेंड से क्रश होती है, गर्लफ्रेंड से, सितंबर में ब्रेकअप, अक्टूबर में फिर से नया बॉयफ्रेंड, नवंबर में ब्रेकअप, न्यू ईयर के लिए न्यू बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, साल के एंड में डिप्रेशन, इंटेलेक्चुअल मेंटल डिसऑर्डर और आपके पास आते रहेंगे। प्रॉब्लम है ये। रिलेशनशिप इश्यूज जो है इज़ वेरी क्रिटिकल। आप जो सुसाइड केसेस गोवा में आप देखते हैं, हमें काफ़ी सारे औरतें और यंग यूथ जो है वो सुसाइड कर रहे हैं। इंडिया इज़ फेसिंग अ सीरियस प्रॉब्लम ऑफ सुसाइड केसेस। ये कोई मतलब, ये आपको टीवी चैनल प्राइम टाइम में ये चीज़ें बहुत कम डिस्कस करते हैं। उधर सिर्फ हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन डिशुम वो बातें होती हैं, लेकिन ये रियल इश्यूज जो है, जो कम्युनिटीज़ को बिल्ड करने वाली चीज़ है, वो आपको जर्नल्स में आप बिटवीन द लाइंस आपको पढ़कर वो समझना पड़ता है। वी नीड टू गो डीपर टू फाइंड द ट्रूथ ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट द सोसाइटी इज़ फेसिंग। तो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को हम लोग को जो है थोड़ा कुछ बेहतर चीज़ें हम लोग को डालने की ज़रूरत है। चौथा जो चीज़ है वो है रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस और रिलीजियस लीडर्स। इनको जो है आगे आना चाहिए और जो चीज़ गलत है उसको गलत बोलना पड़ेगा और जो चीज़ सही है उसको सही बोलना पड़ेगा। और रिफॉर्मेटिव प्रोग्राम्स जो है हमारे चर्चेज़ में, टेम्पल्स में, मस्जिदों में जो है इसको हम लोग को करना पड़ेगा। एंड द फिफ्थ एंड फाइनल कंपोनेंट ऑफ रिफॉर्मिंग एंड करेक्टिंग द सोसाइटी वो है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट चाहे तो पोर्न साइट्स को बंद कर सकती, लेकिन नहीं बंद करती। गवर्नमेंट चाहे तो ड्रग्स बंद कर सकती, नहीं बंद करती। गवर्नमेंट चाहे तो अल्कोहल को कम कर सकती, लेकिन नहीं करती। ये भी एक इसीलिए हमारे वुमेन्स विंग के डिपार्टमेंट जो है, यहाँ के एमपी से, दोनों एमपी से, साउथ गोवा, नॉर्थ गोवा, एमएलए से, सबके साथ मुलाकात करके बताए कि कुछ चीज़ें जो है समाज से जो है गवर्नमेंट को अपना कदम उठाना पड़ेगा। अगर हमारे बच्चों को बचाना है, हमारे नए जनरेशन को बचाना है, हमारे फैमिलीज़ को बचाना है, तो ये चीज़ करना पड़ेगा। और ये जो प्रोग्राम है, ये आप लोगों के अंदर वो जो चीज़ें ख़त्म हुई या ये समझते हैं कि हम लोग नहीं कर पाते हैं, सच को अगर एक आदमी भी बोले कि सच है तो वो सच ही रहेगा, और झूठ को 10 लोग आके बोलेंगे कि ये सच है, वो झूठ सच नहीं बन सकता। ये हकीकत है और इस पर जो है हम लोगों को जो है आगे बढ़ना चाहिए। अभी आप बोलेंगे ये तो बात सुनने में अच्छा आया, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स में बोल के अपने बात को ख़त्म करता हूँ। I'll just take 2 more minutes इंशाल्लाह।
मैंने जो कुरान का वो चैप्टर पढ़ा, उसमें ईश्वर अल्लाह ये कहता है कि मैनकाइंड इज़ इन लॉस। इंसान, उन्होंने मुसलमान नहीं कहा, क्रिश्चियन नहीं कहा, हिंदू नहीं कहा, इंसान लॉस में। वलस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बेशक इंसान कसारे में है, ही इज़ इन लॉस। एक्सेप्ट, सिवाय वो जो ईमान लाए, faith, belief in God, belief in the day of judgment, belief in righteousness, belief in morality, ये एक आदमी के अंदर आना चाहिए। दूसरा वो कहता है इस बिलीफ के बुनियाद पर उसको कुछ अच्छे काम करना चाहिए, गुड डीड्स, लोगों की मदद करना, गरीबों की मदद करना, अनाथ बच्चों को देखना, अड़ोस पड़ोस में मदद करना, चाहे वो छोटी सी बात क्यों ना हो, वो मदद करना। ये है प्रैक्टिकल स्टेप्स एक समाज को ठीक ठाक करने के लिए। ये इंडिविजुअल लेवल पर हम लोग ये कर सकते हैं। आई कैन बी फेथ, आई कैन ब्रिंग फेथ इन गॉड, इन हिज क्रिएशन, इन हिज गाइडेंस, इन हिज डे ऑफ जजमेंट, दैट वी आर ऑल अकाउंटेबल। वो बड़ा फैक्टर है। हम सब कुछ जो है, आप देखिए कंपनी है या पार्टीज़ है या कहीं भी है, ऑडिटर होते हैं जो ऑडिट करते हैं। विदाउट ऑडिटिंग कुछ नहीं बनता। मैडम स्कूल में है, स्कूल में ऑडिटिंग होता है, अकाउंटिंग ऑडिट्स होता है। तो ये ईश्वर जो ये धरती हमारे हाथ में दिया, ये इंटेलिजेंस हमारे दिमाग में दिया, क्या अल्लाह, ईश्वर, गॉड इसका अकाउंटिंग नहीं करेगा? तो ये फेथ का एक हिस्सा ये है कि हम सब हिसाब दे, अकाउंटेबल हैं। एवरी ह्यूमन बीइंग हु वाज बोर्न इन दिस अर्थ इज अकाउंटेबल टू गॉड ऑलमाइटी। नन ऑफ अस विल बी फ्री। हम में से कोई फ्री नहीं हो सकता। ये फेथ और राइटियस डीड, अच्छे काम करना। तीसरा है कि लोगों को मोरालिटी की तरफ बुलाना, हक की तरफ बुलाना, ट्रूथ की तरफ बुलाना। ये काम हम सबको करना है। एक दो तो हम लोग कर लेते हैं, नेक अमल करते हैं, लेकिन ये तीसरा काम जो है वो हम लोग गिव अप कर चुके हैं, जो है वो चलता है। द थर्ड ड्यूटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ कलेक्टिवली वी गो एंड इनवाइट पीपल टू राइटियसनेस। बोले कि ये गलत है, ये अच्छा है, ये साफ, ये फ़र्क होना चाहिए। अब बोलो, जो लोग मेहनत करते हैं, एक नाथ सर है, रोचा सर है, और भी समाज में बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे अच्छे काम करते हैं। अच्छे काम करने वालों के साथ दर्द हम लोग समझे जब एक नाथ सर ने हमको बोला कि क्या चीज़ होती है। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो बुराई करते हैं और बुराई को फैलाते हैं और लोगों को बुराई की तरफ बुलाते हैं। हाउ कैन द एंड रिजल्ट ऑफ द गुड एंड द बैड बी द सेम? तो देयर इज अ डे ऑफ जजमेंट। एक ऐसा दिन है जहां हम सबको अकाउंटेबल है, ये बात तय है, और जो भी है वो उससे फ्री नहीं होगा। और आखिरी बात, ये काम तो हम लोग करेंगे, लेकिन ये वही कर सकते हैं जिसके अंदर सब्र है, जिसके अंदर कामनेस, हार्डवर्क है, डेडिकेशन है। मुश्किलात आएंगी। अब एकनाथ सर जब जाएंगे या रोशा सर सब जाएंगे या गैब्रियल कुछ अच्छे काम करने के लिए जाएंगे तो रोकने वाले बहुत सारे लोग रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद हक के लिए हमको सब्र के साथ, वी माइट हैव टू बेयर, वी माइट हैव टू फेस सम डिफिकल्टीज, बट ये तो हकीकत है। हुसैन बोल्ट इज वन ऑफ द वर्ल्ड फेमस एथलीट। ही सेज सबके ड्रीम्स होते हैं, एवरीबडी हैज़ ड्रीम्स, आपके भी, मेरे भी, एवरीबडी हैज़ ड्रीम्स, बट टू अचीव द ड्रीम one needs to be working hard, one needs to be consistent, one needs to sacrifice and sweat it out. हम सबका ड्रीम है कि ये समाज अच्छा बने। सिर्फ सपना रखने से नहीं होता, इस सपने को उस रियलिटी में बदलने के लिए हमको अपना पसीना बहाना पड़ेगा, अपना कुछ पैसा उसमें खर्च करना पड़ेगा, अपना थोड़ा वक्त उस काम के लिए लगाना पड़ेगा, और कुछ कुर्बानियाँ देना पड़ेगा अगर इस समाज को बचाने के लिए। यही मैसेज है जो मैं आप लोगों को देना चाह रहा। इट इज़ नॉट सफिशिएंट टू ड्रीम, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट वी सैक्रिफाइस आवर वेल्थ, आवर टाइम, आवर मनी, आवर एफर्ट्स, आवर एबिलिटीज़ टू अचीव दैट ड्रीम। और ये सपना यकीनन आज हिंदुस्तान का हर आदमी चाहता है कि हमारा हिंदुस्तान का समाज जो है अच्छा बने। और ये जो बुराइयां हैं, कसिनो है, जुआ है, मटका है, शराब है, ड्रग्स है, और भी फैमिली मोरालिटी है, फैमिली इमोरलिटी है, इकोनॉमिक इमोरलिटी है, फाइनेंशियल इमोरलिटी है, ये सब खत्म हो और हमारा समाज जो है पाक साफ बने। मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि इस मोरालिटी के बात को लाइटली ना लें, बल्कि अपने अंदर जो है वो डिटर्मिनेशन रखे कि इमोरलिटी से हम सबको बचना है।
जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल का जो डिस्टेंस है, उतना डिस्टेंस हमारा और बुराइयों से रहना चाहिए. वी शुड बी नो वे नियर वाइसेस एंड बैड हैबिट्स. और ये एनवायरनमेंट हम अपने नए जनरेशन को देखना. किम्बली ने अच्छा याद दिलाया कि छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ हैं. उस छोटे छोटे बच्चे को जो है कौन से, उसका तैयारी कहाँ से शुरू होती है? उसकी तैयारी शुरू होती है माँ के वूम में शुरू होता है. When the child is in the womb, that is the time we need to instill qualities in her. If the mother takes intellectual activity during the pregnancy, if the mother is righteous, if the mother is humble and is surrounded with good people, with good thoughts, the child also will come out with good thoughts and good ideas. ये important चीज़ है जो हम सबको समझना चाहिए. मैं इसी बात के साथ अपने बात को ख़त्म करता हूँ. Thank you. May God Almighty make us all wonderful people living according to His guidance. Thanks you.